السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتاح العربیہ حصے اول کے چوتھے سبق چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کے اسباق میں ہم نے دیکھا تھا کہ مصنف نے پہلے سبق میں اسماء اشارہ کو مبتدا بنایا تھا۔ پہلے سبق میں اسماء اشارہ کو مبتدا بنایا تھا۔ دوسرے سبق میں ضمائر کو مبتدا بنایا اور تیسرے سبق میں بھی ضمائر کو مبتدا بنایا، اور خبر جو بنائی تھی دوسرے سبق میں اعلام تھے، نام تھے، انا زیدن، اس طریقے سے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے پروفیشن وغیرہ کو جو ہے اگلے سبق میں مدرس تھا، طبیب تھا، اس طریقے کے پروفیشن کو جو ہے مصنف نے خبر بنائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جملے اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، اور یہ پورے معنی کمپلیٹ معنی دیتا ہے، تو اس لیے آخری میں ترجمے میں ہم ہے یا ہو لگا رہے تھے، جس طریقے کی بھی ضرورت ہے۔ اب الدرس الرابع، چوتھے سبق میں مصنف فرما رہے ہیں کہ یہاں بچوں کو یہ بتایا جائے کہ غیر عربی ملکوں، شہروں اور دیہاتوں کے نام پر ایک زبر ایک پیش آئے گا، دو زبر دو پیش نہیں آئیں گے، یعنی تنوین نہیں آئے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے غیر منصرف کا بیان پڑھ لیا ہوگا۔ اگر غیر منصرف کا بیان پڑھ لیا ہو تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، ورنہ بس اتنی بات یاد رکھیں کہ آپ صرف مفتاح العربیہ پڑھ رہے ہیں عربی سیکھنے کے لیے، تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو غیر عربی ملکوں، شہروں اور دیہاتوں کے نام ہوتے ہیں ان پر تنوین نہیں آتی، زیر نہیں آتی۔ جو غیر عربی ملکوں، شہروں اور دیہاتوں کے نام ہوتے ہیں ان پر تنوین نہیں آتی، تنوین کی جگہ جو ہے ایک زبر یا ایک پیش آتا، اور زیر بھی نہیں آتا، زیر کی جگہ پہ پیش آتا۔ اب دیکھو اسی کو بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سبق کو دیکھنا ہے۔ تو پہلی مثال ہے دیوبندو مدینت، دیوبندو مدینت، دیوبندو مدینت، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں دیکھو، دیوبند جو ہے یہ ہندوستان کے ایک شہر کا نام ہے، بستی کا نام ہے، اس لیے یہاں پر تنوین نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی جو ہے عربی نام ہوتا تو اس پر تنوین آتی تھی، اگر کوئی عربی نام ہوتا تو اس پر تنوین آتی تھی، جیسے مدینتن ہے، تو دیوبندو مدینتن، تو دیوبند ایک شہر ہے، دیوبند ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، دیوبند ایک شہر ہے۔ بنگلہ دیش دولت، یہ بنگلہ دیش عربی میں کیونکہ گاف نہیں آتا ہے تو گاف کی جگہ غین آیا ہے، اور کیونکہ یہ غیر عربی زبان کا لفظ ہے اس لیے جو ہے اس پر تنوین نہیں آئی، تو بنگلہ دیش دولت، دولتن کہتے ہیں ملک کو، تو کیا ہو گیا اس کا ترجمہ؟ اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بنگلہ دیش، ٹھیک ہے، ایک ملک ہے، بنگلہ دیش۔ اس کے بعد دیکھیے دہلی عاصمتن، دہلی عاصمتن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بات چیزیں نا تھوڑی لاجک بھی آپ کو اس سبق میں کام میں آ جاتی۔ اب آپ ہندوستان سے ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے کہ دہلی جو ہے انڈیا کا کیپٹل ہے، تو عاصمتن کے معنی ہے کیپٹل، پائے تخت، تو دہلی پائے تخت ہے، یا آپ کہہ لیں کیپٹل ہے۔ اس کے بعد ہے الہندو دولتن، عربی میں ہندوستان کو الہندو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الہندو دولتن۔ بہت سے بچے جو ہے مشق کرتے وقت جو ہے الہند کی جگہ پر ہندوستان کے لیے ہندوستان لکھ رہے ہیں، ورنہ عربی میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہندوستان کے لیے عربی میں الہندو آتا ہے، تو الہندو دولتن یعنی ہندوستان، ہندوستان ایک ملک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے محمود جندی، محمود، محمود نام ہے کسی بندے کا، جندی یون، ٹھیک ہے، تو محمود ایک، جندی کے معنی آتے سپاہی، ایک سپاہی ہے، محمود ایک سپاہی ہے۔ اس طریقے سے ہم اس سبق کو حل کریں۔ اس کے بعد ہے سعاد قاریت، سعاد یہ ایک لڑکی کا نام ہے، قاریۃ، ٹھیک ہے، سعاد
क़ारियतुन, सुआद पढ़ने वाली है या एक पढ़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद है मुहम्मदुन रसूलुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुन रसूलुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। उसके बाद है उमरु सहाबियुन, उमरु सहाबियुन, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं। उसके बाद है खालिदुन तिफलुन, खालिदुन तिफलुन, तिफलुन कहते हैं छोटे बच्चे को, तो खालिद एक बच्चा है, खालिद एक बच्चा है, खालिद एक बच्चा है। उसके बाद है नबीलुन तालिबुन, नबीलुन तालिबुन, नबील एक तालिबे इल्म है, नबील, तो ये क्या हो गया, नबीलुन तालिबुन। उसके बाद है साजिदतु बिंतुन, साजिदतु बिंतुन, साजिदा एक लड़की है। देखिए ये पूरे मुब्तदा खबर के जुमले चल रहे हैं। मुब्तदा खबर के जुमलों की खासियत ये होती है कि मुब्तदा हमेशा अक्सर मारिफा होता है, तो आप पूरे मुब्तदा को देखें मारिफा है, या तो जो है अलिफ्लाम है कहीं पर, अभी तो अलिफ्लाम जैसे अल हिंदू पर आया, या प्रॉपर नेम है, और खबर जो है पूरी जगहों पर नकीरा है, जैसे क़ारियतुन, रसूलुन, सहाबियुन, तिफलुन और तालिबुन और बिंतुन, ये क्या है, नकीरा है। अब उसके बाद क्या है, रशीदतु लाइबतुन, रशीदतु लाइबतुन, ठीक है। आखिरी का एराब नहव में इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उसकी फिक्र करें कि आखिरी में एराब क्या लगाएंगे। रशीदा एक खिलाड़ी है, रशीदा एक खिलाड़ी है, ठीक है। उसके बाद क्या, मूसा नबीयुन, मूसा नबीयुन, मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम नबी है, मूसा अलैहिस्सलाम नबी है या एक नबी है। उसके बाद है आइशतु सहाबियतुन, आइशतु सहाबियतुन, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सहाबिया हैं, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सहाबिया हैं। उसके बाद है राशिदुन तबीबुन, राशिदुन तबीबुन, राशिद क्या है, तबीब कहते हैं डॉक्टर को, राशिद डॉक्टर है, यह राशिद एक डॉक्टर है। सलीमतु सौइमतुन, सलीमतु सौइमतुन, ठीक है। सलीमा रोजेदार है, सौइमतुन इससे पहले भी आया था, सलीमा क्या है, रोजेदार है। इस तरीके से आप पूरे सबक की मश्क करोगे। तो बात समझ में आई कि इस जुमले में, इस सबक में जो है मुरक्कब मुफीद यानी जुमले इस्मिया को इस्तेमाल किया गया है, मुब्तदा खबर लाई गई है, मुब्तदा में आमतौर पर जगहों के नाम, मुल्कों के नाम लाए गए हैं और लोगों के भी नाम आए हैं, और खबर में जो है वो जो जगह है, मुल्क है या शहर है, इसी तरह रसूल हैं, सहाबी हैं, वो बातें लाई। उसके बाद है कश्मीरु जमीलतु, कश्मीरु जमीलतु, कश्मीरु जमीलतु, थोड़ा लिखने में क्योंकि पेन टैबलेट में इस्तेमाल कर रहा हूँ दुश्वारी हो रही है। तो कश्मीर क्या है, खूबसूरत है, कश्मीर खूबसूरत है। खूबसूरत कश्मीर नहीं कहेंगे, जुमला मुरक्कब मुफीद है, और इसी तरह कश्मीर क्योंकि गैर अरबी जबान का नाम है इसलिए उस पर तनवीन नहीं आएगी। हमलाया जबलुन, हमलाया जबलुन, हमलाया बोले तो वही हिमालय पहाड़, हिमालय एक पहाड़ है, हिमालय एक पहाड़ है। उसके बाद है अल कुरआन किताबुन, अल कुरआन किताबुन, कुरान पर दो पेश क्यों नहीं आए, क्योंकि शुरू में अलिफ लाम है,
कुरान मजीद एक किताब है, कुरान मजीद एक किताब है, ठीक है। अल इस्लाम दीनुन, अल इस्लाम दीनुन, इस्लाम एक दीन या कह लो आप मजहब है। तो यहां पर आपका सबक मुकम्मल हुआ। अब यहां पर हमारी मश्क शुरू होने वाली है, तो पहले सबक की बातों को आप जहन में रखें। अब देखो यहां पर आपको मश्क आ रही है, तो मश्क से पहले सबक में क्या सिखाया गया, ठीक है ना। अहम चीज क्या होती है मश्क में, कि जो टॉपिक आप पढ़े हैं वो टॉपिक आप समझे या नहीं समझे। तो अब दो कामें आपको करने हैं, यहाँ तो फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन साथ में क्या करना है, दो कामें करनी है कि अगर आखिर में इराब ना हो तो इराब लगाएं। अब देखो पाकिस्तान, अरबी में पानी आता है इसलिए पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान क्या है, दौलतुन, मुल्क है ना, तो पाकिस्तान, पाकिस्तान दौलतुन। नील, ठीक है, नील क्या है, दरिया है, नील कहते हैं ना, तो आप कह दीजिए नहरुन, नील क्या है, एक दरिया है। तौइफ, तौइफ क्या है, मक्के का, सऊदी का शहर है ना, जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे, तो उसको आप कह दीजिए मदीनतुन। अत-तौरात, जैसा अभी अल कुरान किताबुन आया, तौरात भी क्या है, एक किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाजिल करदा है। जैनब के बारे में आप बहुत से काम कर सकते हैं, बिंतुन भी रख सकते हैं, दुरुस्त हो जाएगा। जैनब एक लड़की है। आप सहाबियतुन भी कर सकते हैं, कि सहाबिया भी हजरत जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, तो ये आपके ऊपर ऑप्शनल है। उसी तरह फातिमा पर भी कर सकते हैं आप, सहाबियतुन रजी अल्लाह तआला अन्हा हो जाएंगे। ये एक आम लड़की के बारे में लिखना हो तो जो है आप बिंतुन भी लगा सकते हैं। उसके अलावा तबीबतुन आ गया, मुदर्रिसतुन आ गया, मुअल्लिमतुन आ गया, पीछे जो बातें हैं, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं, तो आप यहाँ लगा दोगे नबीयुन, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लगा था, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी है। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब यहाँ पर मेंशन कर दिए सहाबी हैं, तो सहाबी, तो सहाबीयुन ला देंगे। हामिद कोई भी बंदा है तो वलदुन कर दीजिए, लड़का है। तिफलुन कर दीजिए, छोटा बच्चा है, ठीक है। हिराउ, हिरा क्या है, गारे हिरा, ठीक है ना, तो आप जबलुन कर सकते हैं, तो हिरा क्या है, एक पहाड़ है। अब उसके बाद है अद्दौहतु, तो दौहा के बारे में आपको मालूम होगा कि ये कतर का कैपिटल है, तो पीछे भी देख लीजिए एक मशहूर शहर कहा गया, तो आप शहर भी ले सकते हैं मदीनतुन, क्योंकि शहर ही छोटा कैपिटल, या जो है आसिमतुन भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये कतर का कैपिटल है, आसिमतुन। कुर्तबा जो है एक शहर है, जहाँ स्पेन का एक मशहूर शहर है, तो आप इसको जो है मदीनतुन कह देंगे, ठीक है। अबू हनीफता, ठीक है ना, अबू हनीफता रहमतुल्लाह अलैह क्या है, इमामुन भी कह सकते हैं कि एक इमाम है। मुज्तहिदुन भी कह सकते हैं कि मुज्तहिद है, ठीक है। इसी तरह जो है ताबईयुन भी कह सकते हैं कि ताबई है। अत-तिरमिज़ी मुहद्दिसुन, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या है, मुहद्दिस है, तो मुहद्दिसुन। मुंबई क्या है, मुल्क है, तो मदीनतुन। इस तरीके से आप इस तमरीन को हल करोगे। शुरुआत की तमरीनें हैं, इसलिए जो है बाज़ जगह पर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मकसद ये है कि आप बात को समझें कि किस तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि बस इसको जो है आप कॉपी कर लें, वो कतन मेरे इरादे में, मेरे मकसद में है नहीं कि आप कॉपी कर लें। आगे तमरीनात जब बड़ी होती जाएंगी और आप सीख चुके होंगे, तो आपको अपनी तमरीनात खुद हल करनी होंगी। चलें, अब ये मश्क जो है आपको करना है, बस मैं गाइड कर दूंगा। सही और गलत जुमले की तरफ निशानदेही करें, क्या सही है क्या गलत है। जैसे मक्का दौलतुन, मक्के मुकर्रमा, दौलतुन के मायने क्या होते हैं, दौलतुन कहते हैं मुल्क को, ठीक है। और यहाँ पर है मक्का मदीनतुन, मक्के मुकर्रमा शहर, ठीक है, मदीनतुन शहर। अब इसमें से करेक्ट कौन सा होगा, मक्के मुकर्रमा तो मुल्क नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, तो मक्का मदीनतुन ये सही हो जाएगा। इसी तरह कराची, कराची बोले तो कराची जो पाकिस्तान का एक शहर है, ठीक है। उसी तरह सफिया है, तो सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, तो रजी अल्लाह तआला अन्हा मशहूर हैं, तो साहबियतुन को दीजिए, ताबियतुन भी है। साजिदुन तालिबतुन सही होगा या साजिदुन तालिबुन सही होगा, देखना है। कालकोता बोलते हमारा कोलकाता इंडिया का, ठीक है, तो वो दरख्त है या शहर है। उसी तरह सीन, सीन कहते हैं चीन को, चाइना को, ठीक है। वो दौलतुन है या करियतुन, आपको देखना है। दौलतुन मुल्क को कहते हैं, करियतुन गांव को कहते हैं। अद्दाई जो है हजरत मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह का एक मजल्ला मैगजीन आता था, वो अद्दाई के नाम से, तो वो मजल्ला है या मदरसा है वो आपको बताना है।
उसी तरह यूपी, यूबी नहीं है, यूपी है, ठीक है ना, अरबी में पानी आता है ना, तो यूपी जो है इंडिया में जो है जो स्टेट है वो विलायतुन, सूबा यानी स्टेट है या शहर है। उसी तरह उर्दून जो है, उर्दून एक शहर है ना, मशहूर शहर, शहर है, मुल्क है, तो मुल्क है या नहर है वो आपको बताना है। उसी तरह अल हिंदू मदीनतुन या सूकुन, तो मदीना तो नहीं है, दौलतुन आना चाहिए था, हो सकता है कि कहीं बाजार भी हो हिंद के नाम से, तो वो ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी तमरीन आप ही को हल करनी है, बस मैंने थोड़ा आपको गाइड कर दिया। अब उसके बाद है अरबी में तर्जुमा करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अरबी में इसका तर्जुमा करना है। मुजफ्फरनगर एक शहर है, तो मुजफ्फरनगर लिख दोगे और शहर की जो अरबी लगा दोगे। बस आप क्या करें, पीछे के सबक को जो है सामने रखें और उसके हिसाब से आप अरबी बनाते जाएं। थाना भवन एक गांव है, तो गांव की अरबी पीछे आ गई है आपको, ठीक है। थाना भवन लिख देना है और गांव की जो अरबी है लगा देना है, ठीक है ना। अब मुजफ्फर नगर को हम नगर कर देंगे, जैसा बांग्लादेश को जो है शहर को क्या कहते हैं, मदीनत, ठीक है। उसी तरह गंगा एक नहर है, नहर की अरबी भी है आपके पास यहाँ पर, और गंगा तो गंगा है। नेपाल एक मुल्क है, तो मुल्क की अरबी आपके पास है, नेपाल को कैसा लिखना है आप लिख लीजिए, नेपाल लिख लीजिए। मौलाना अशरफ अली थानवी एक आलिम है, ठीक है ना, तो आप ये मौलाना अशरफ अली थानवी पूरा नाम लिख लें, आलिम की अरबी आपको पीछे मिल जाएगी, लिख दें। मज़ाहिर उल उलूम एक मदरसा है, तो मज़ाहिर उल उलूम अरबी में आप लिख दीजिए, और उसके बाद ये मदरसे की जो अरबी है वो लिख दीजिए। काहरा एक दारुस सल्तनत है, तो काहरा तो आप लिख दीजिए, दारुस सल्तनत की अरबी पीछे आप लगा दें। शाहजहां एक बादशाह है, तो शाहजहां वैसे लिख दें, और एक बादशाह है, बादशाह की अरबी पीछे मिल जाएगी, लगा दी। शाफई एक इमाम है, तो शाफई वैसे लिख दीजिए, इमाम जो है अभी हमने इमाम अबू हनीफा के बारे में जो फिल किया है वहां से आपको मदद मिल जाएगी। हाँ, ये याद रखेंगे इमाम शाफई को जो है शाफई अलिफ्लाम के साथ लिखेंगे, ठीक है, अरबी में। मुस्लिम एक मुहद्दिस है, जैसा तिरमिज़ीयुन मुहद्दिसुन आया उसी तरह उसी पैटर्न पर यह हल हो जाएगा। उसी तरह हुज़ैफा एक सहाबी है रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो हुज़ैफा आ जाएगा और सहाबियुन आएगा, सहाबियतुन नहीं आएगा, क्योंकि ये सहाबी मुजक्कर का नाम है। दारुल उलूम एक मदरसा है, जैसे मज़ारिल उलूम को हल करे वैसे ये हल कर लोगे। ताजमहल एक मज़ार है, मज़ार की अरबी पीछे है ज़रीहुन, आप ताजमहल लिखोगे और उसको हल कर लो। उसी तरह चांदनी चौक एक बाजार है, तो चांदनी चौक को जो है जाननी चौक लिख दीजिए आप अरबी में, ठीक है। और बाजार की जो अरबी है यहाँ पर ही आई है वो लगा दीजिए आप। तो इस तरीके से ये तमरीन हल होगी। आप ये तमरीन हल कर कर जो है यूट्यूब पर भी भेज सकते हैं, कि यूट्यूब पर एक नया फीचर है कि जो है कि आप अपनी बुक में लोगे तो मेरी प्रोफाइल पर आपके फोन से जाओगे तो वहां पर आपको होमवर्क अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप भेजना चाहे तो वहां से भी भेज सकते हैं, और अगर कमेंट में आपको लिखना है तो कमेंट में भी लिखकर भेज दीजिए, मैं इंशाल्लाह चेक करने की कोशिश करूंगा। चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब आगे दाल जो है यहाँ पर सवाल जवाब है। पिछले सबक में हमने देखा था कि हल का तर्जुमा क्या होता है, क्या। अब इस सबक में जो है मुसन्निफ जो है अब सवाल के करने के तरीके में इजाफा कर रहे हैं। पहले जो है हल अंता जैदुन, हल अंती फातिमा, तो इस तरीके के सवाल हुए थे। अब किसी चीज की तरफ इशारा कर कर, तो देखो हाजा कलमुन हम पढ़ चुके, उससे पहले हल लगा दोगे, हल हाजा कलमुन, क्या ये कलम है। अब जवाब जवाब दो जगह तरीके से हो सकते हैं, नाम हाजा कलमुन, हाँ ये कलम है, या नाम हाजा ला हाजा, ला हाजा मिरसामुन, नहीं ये पेंसिल है, इस तरीके से। तब देखें मुसन्निफ ने जो मशक कराई है, आप लोग मशक करें आपस में, अगर दो दोस्तों मिलकर तैयारी कर रहे हो तो उस तरीके से अच्छा हो जाएगा। वरना आप अपने हाथ में जो है किसी चीज को पकड़ लें, जैसे हल हाजी दवातुन, क्या ये दवात है, नाम हाजी दवातुन, हाँ ये दवात है। इसी तरह जो है पूरी मशक को आपको करना है, और आपको पढ़कर, जोर से पढ़कर, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा इंसान को जो है कन्वर्सेशन शुरू करना है, बातचीत शुरू करनी है, और खुद को लीड करना है बातचीत में, तो इंसान को सवाल करने की जरूरत आती है। जो जवाब देने वाला होता है वो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी सवाल करने वाला होता है। तो बातचीत करते वक्त जो है सवाल की ज्यादा नौबत आती है, तो यहाँ पर आपको सवाल बनाने आने चाहिए। हल हाजा मकतबुन, क्या ये मेज है, नाम हाजा मकतबुन, हाँ ये मेज है, ठीक है ना। हल तिल का हकीबतन, क्या वो बैग है, नाम तिल का हकीबतन, हाँ वो बैग है। तो इस तरीके से पूरे सवालों के जवाब आप हल करें, और अगर कुछ दुश्वारी हो तो आप पूछें, मैं इंशाल्लाह फिर पूरों को भी समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये आखिरी बिट है इस सबक की,
कि इसमें मुसन्निफ ने माँ का इंट्रोडक्शन कराया। इससे पहले हमने देखा था मन के बारे में, मन ज़वील उकुल इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है और उसका तर्जुमा था कौन। अब माँ जो है सवाल में चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूछना है कि ये क्या है वो क्या है, तो हम इस्तेमाल करते हैं माँ। ठीक है, तो माँ हाजा ये क्या है, माँ हाजा ये क्या है। अब हाजा के बाद आप कुछ भी लगा दीजिए, हाजा कलमुन, हाजा मकतबुन, हाजा मिरसामुन। ठीक है, जो भी मुजक्कर है आप लगा सकते हो। उसके बाद है माँ हाजी ये क्या है। अब ये हो गया मुअन्नस के लिए, हाजी क्योंकि मुअन्नस के लिए आता है, पहला सबक समझे हो तो ये एक आसान है। अब हाजी मिजरातुन आ गया, हाजी जो है दौलतुन आ गया, हाजी मकतबतुन आ गया, हाजी दवातुन आ गया, बहुत सी चीजें ला सकते हैं। माँ तिल का वो क्या है, तिल का फिर ये क्या हो गया आपको मुअन्नस के लिए हो गया, तो तिल का बिरकतुन आ गया। तिल का जो है कोई सी भी चीज आप जो है जो मदरसतुन आ गया, कौन सी भी चीज जो मुअन्नस की आपने पीछे पढ़ी है वो चीज हो, ज़वील उकुल ना हो, वो आप ला सकते हैं। मा जालिका वो क्या है, मुजक्कर का हो गया। अब जालिका मस्जिदुन है, ठीक है, जालिका और भी जो भी चीजें हैं, मकतबुन है, जालिका और भी जो है जिदारुन है, तो जो भी चीजें हैं, जालिका कलमुन है, उसे भी ला सकते हैं। फिर मा जालिका है, वही जालिका मंजिलुन। अब यहाँ मंजिल है, ये अल्फाज जो नए हैं इनके मायने आपको मालूम होने चाहिए। मन हाजा, अब देखो यहाँ से मुसन्निफ ने मन ला दिया ताकि आपको मशक हो जाए। अब मन जो आता है ज़वील उकुल के लिए आता है, यानी इंसानों के लिए समझ लो, तो अब ये पूरे ज़वील उकुल के लिए आ जाएंगे यहाँ तक। तो मन हाजा ये कौन है। अब हाजा बैतुन कहोगे गलत हो जाएगा, हाजा बैतुन कहोगे गलत हो जाएगा, क्यों, घर में अकल नहीं होती, तो हाजा रजुलन आ जाएगा, हाजा तबीबुन आ जाएगा, हाजा मुदर्रिसुन आ जाएगा, हाजा मुअल्लिमुन आ जाएगा। उसी तरह मन हाजिही, यहां पर भी ज़वील उकुल आएगा, हाजिही मकतबतुन कहोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि मकतबा लाइब्रेरी में अकल वकल नहीं होती। हाजी दौलतुन कहोगे गलत हो जाएगा, दौलत में अकल नहीं होती, यानी मुल्क में। तो हाजी इमरातुन आ गया, हाजी बिनतुन आ गया, हाजी ताबियतुन आ गया, कुछ भी आ जाए, लेकिन इंसान का आना है। मन हाजी फिर ये मुअन्नस का आ गया, सेम है बात। मन जालिका वो क्या है, सेम बात है जो मन हाजा के बारे में आई थी, बस ये जालिका दूर के लिए है, हाजा करीब के लिए। फिर यहाँ पर माँ तिल का वो क्या है, तो तिल का मदरसतुन आ गया, ठीक है। उसके अलावा जो है जो भी मुअन्नस के लिए चीजें आती हैं वो आ जाएंगी। मन जालिका का भी वही है, जालिका साइकुन वो ड्राइवर है, मन तिल का वो कौन है, तिल का उस्तादतुन। उसी तरीके से अला हाजल क़ियास। इन एक्सरसाइजेस को अच्छे से मश्क करें, इम्तिहान के लिए सिर्फ ना पढ़ें। किताब का मकसद है कि आप अरबी जबान सीख सकें, छोटे छोटे अल्फाजों से बड़े बड़े जुमले बनाना आपको सिखाया जाए। तो एक मरतबा हिदायत जो मौलाना ने लिखी हैं शुरू में, उनको आप पढ़ें, अगरचे वो असातिज़ा के लिए लिखे हुए हैं वो भी। हमारा मकसद ये ना हो कि हम सिर्फ किताब को हल कर लें और कामयाब हो जाएं, और कामयाब होने के बाद इनके अल्फाज मानी व जुमला बनाने का तरीका भूल जाएं। हर एक सबक आगे के सबक के लिए कड़ी है, हर एक सबक आगे के सबक के लिए कड़ी है, तो उस कड़ियों को आपको जोड़ते हुए चलना है। अच्छे से जितना मश्क करोगे उतनी आप ये किताब अव्वल हिस्से के आखिर तक जो है आप बड़े बड़े जुमले बनाने के काबिल हो जाओगे, जो तमाम जुमले इस्मिया से शुरू होते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ें और कदर से पढ़ें, और ये सोचें कि ये कुरान करीम की ज़बान है, तो अरबी ज़बान सीखने के लिए किताब में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे अरबी ज़बान सीखना है, ना कि मुझे सिर्फ एग्जाम में पास होना। लाजिम बात है, जब आप जबान सीख लोगे, जुमले बनाने आ जाएंगे, तो आप इम्तिहान में भी पास हो जाओगे, लेकिन सिर्फ इम्तिहान के लिए खुदा रहा ना पड़े। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सबक में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।